doing the further adjusting entries, I would just revise whatever we have done so far, just to refresh whatever we have done, and we would try that we would finish the accounting portion today. That is again a try that we finish whatever was our plan about basic financial accounting. We finish it today. Let us see whether we can finish it or not. But we would try to complete the accounting cycle, which is the basic of any accounting subject, right? We would try finishing it, and we would try then moving to the financial portion. This accounting, why we have done that? Because it is very, very difficult understanding any financial system without understanding the accounting model. These are the byproducts of accounting model known as income statement, balance sheet, statement of owner's equity or statement of retained earning, and statement of cash flows, upon which any financial manager makes decision. So it is important to understand that why and how do we construct these financial statements, right? I hope you would understand and appreciate that why we have gone through the whole pain of doing it. So we already have done 3 adjusting entries. I would repeat whatever we have done so far. We started with generalizing the business transaction. That was the first step of accounting cycle. We started with placing business entries into the form of debit and credit into general journal. That was the first thing, placing it into general journal. The second step was posting into ledger accounts. The third step was constructing a trial balance. And the fourth step was obviously to do adjusting entries. Adjusting entries, as we discussed, were of 4 types. What were the 4 types of adjusting entries? Entries to apportion recorded cost, entries to apportion unearned revenue. Number 3rd, entries to record unrecorded expenses. Number 4th, entries to record unrecorded revenue. Right, sir? These were the 4 types of adjusting entries which we discussed. We discussed that adjusting entries are so that a gentleman or lady, whoever is the accountant of a company, does at the end of the time period. Nobody tells them, nobody bills them, nobody sends them a bill, nobody sends them a note. It is what they have to do themselves. These are the adjusting entries, right? So we have done 3 kind of adjusting entries, or 3 adjustments over here. Let us move forward. Whatever information is available to us in this particular question, we would move forward with that, and we'd see what next we need to do. So I do not have brought the laptop today because I assume that you guys have got the books or the printouts, whatever it is, and I have brought I've asked the TA to give the printout of the page from which we were doing it to myself. So what I am doing right now, I am reading the question from here, and then I keep doing the same question. We'll finish inshallah this today. So let us come to the part D. Office supplies on hand at December 31st. Office supplies on hand at December 31st are estimated at 600. 1st दिसंबर को आपने ऑफिस सप्लाईज ली थी, जो आपने ओरिजिनली ऑफिस सप्लाईज ली थी. अगर आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, आप अपने लेजर में देखेंगे ऑफिस सप्लाईज, तो आपको कितने की नजर आ रही है? 1000 की. ऑफिस सप्लाईज आपको ओरिजिनली कितने की नजर आ रही है? जो आपने परचेज की थी 1000 की. महीने के शुरू में दीज वर ऑफ 1000, महीने के आखिर में कितने की रह गई? 600 की. इसका क्या मतलब हुआ? 400 की कंज्यूम हो गई. किसी ने आपको बिल नहीं करना, किसी ने आपको बताना नहीं है, आपने खुद अकाउंट फॉर रखना है. अकाउंटेंट का काम है अकाउंट फॉर करना, ये अंडरस्टैंड करना कि अ पार्ट ऑफ दैट एसेट हैज बीन कंज्यूम्ड. So you would record it as an expense. So D part में आप लिखेंगे office supplies expense, office supplies expense to office supplies, and by how much amount? 400. देखिए why it's D sir. Oh sorry, my bad. Okay, office supplies expense to office supplies. Why office supplies expense? It has been consumed in the business, and we have got a ledger, namely office supplies expense. If you go over here, you see there is this office supplies expense. ये देखिए लेजर बना हुआ है office supplies expense. इसे डिफाइन भी किया हुआ है उसने office supplies expense के नाम से. जब आप देखिए ऑर्डर इज समथिंग एल्स. ऑर्डर इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी.
ऑर्डर, आपने ऑर्डर की बात की है, आप ऑर्डर की बात करना चाहते हैं नाम की, हेड की? एक चीज अकाउंट हेड है, एक चीज ऑर्डर है। मैं दोनों को डिस्क्राइब कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एग्जाम में स्पेसिफाई कर देंगे आपको लेजर हेड्स, तो आपने वही लेजर हेड्स यूज करने। प्रैक्टिस में तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस में आप जिन जिन कंपनीज में काम करते हैं उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स अप्रूव कर देता है। आप इस चार्ट ऑफ अकाउंट के बाहर काम नहीं कर सकते। जो मैंने अपनी कंपनी के बोर्ड पे बैठ के चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर लिया, अप्रूव कर लिया, आप कंपनी के सीईओ हैं, आप कंपनी के सीएफओ हैं, whoever you are, you just cannot use any other account's name. Why? Because the board of director has, approved that. Same is the case in examination. If you have been given a particular chart of account, if you have been given particular names, you would have to follow them only. You can't name them anything else. But if you have not been given any name, then you can name whatever way you want them to. So आपको बताया ही नहीं, मैंने नाम नहीं दिया, तो फिर आपका जो दिल करे उसके मुताबिक नाम लिख लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, राइट जी। अच्छा, दूसरी चीज है ऑर्डर। अभी आपने बात की, इन्होंने ये कहना नहीं चाहते थे ऑर्डर, पर ऑर्डर पे बात कर दी तो मैं डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना है ये। अगर आप इन तमाम लेजर्स को देखें तो उनका एक ऑर्डर आपको लगा नजर आएगा। ये ऑर्डर किस तरह है? सबसे पहले एसेट्स लिखे हैं, देख लीजिए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, प्रीपेड रेंट, आर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, रेंटल इक्विपमेंट, एंड उसके बाद ये सारे एसेट्स हैं। उसके बाद लायबिलिटीज है, उसके बाद इक्विटी है, उसके बाद रेवेन्यू है, उसके बाद एक्सपेंसेस है। आप जहां मर्जी, दुनिया का स्टैंडर्ड है, एक तरतीब फॉलो करेंगे, या एग्जैक्टली सेम तरतीब फॉलो होगी या उसका इनवर्स होगा। दैट्स द वे इट इज, राइट जी। और ये तरतीब फॉलो क्यों होती है? या हम मोस्ट लिक्विड से लीस्ट लिक्विड की तरफ जाते हैं, या हम लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड की तरफ जाते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मली क्या होता है? मोस्ट लिक्विड से लीस्ट लिक्विड की तरफ जाना। मोस्ट यानी सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर एक्सपेंस, फिर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस। एसेट्स में सबसे पहले मोस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड चीज कौन सी होती है? कैश। उसे आप मोस्ट लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी आइटम, इनटू एनीथिंग लाइक कैश डज। कैश को ग्लास में डालूंगा, ग्लास की शक्ल ले लेगा। कैश को जग में डालूंगा, जग की शक्ल ले लेगा। कैश को जिस तरह, जिस कंडीशन में चाहूं मोल्ड कर लूं। कैश को चाहूं गाड़ी बना लूं, कैश को चाहूं एसी बना लूं। एसी को गाड़ी बनाना मुश्किल काम है, अग्रीड ना सर? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपने चूंकि उस तरतीब की बात की, इसलिए मैंने डिस्कशन कर ली। सर, रेवेन्यू लिखा होगा। ऑफिस सप्लाईज एक एसेट भी है। देखिए, जब मैं ऑफिस सप्लाईज खरीद, हमारे 3 जनरेटर बाहर खड़े हुए, उन जनरेटर का डीजल हमारे सप्लाई है, ऐसे ही है ना सर? हम समझिए कि 100 गैलन महीने का लाकर 100 गैलन ला के रख देते हैं। एक महीने में ज्यूम कीजिए लोड शेडिंग ही नहीं होती, 100 गैलन कंज्यूम ही नहीं होता। क्या वो एक्सपेंस है? नहीं सर, वो मेरा एसेट है। मैं जब चाहूं बेच दूं, वो मेरा एसेट है। एक्सपेंस कब होगा? जब कंज्यूम होगा। ऑफिस सप्लाईज एक एसेट रहता है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, जो खर्चा है। ऑफिस सप्लाईज तो एसेट है। एक हेड ऐसा भी कैटेगरी में नहीं फॉल करता, जो कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, जैसे डिविडेंड्स का बनाया था, वो कहां? नहीं, देखिए कॉन्ट्रा एसेट्स क्या है, आप बड़ी वैलिड बातें कर रहे हैं। इस सारी डिस्कशन में ये बातें आनी चाहिए, डिस्कशन से ही बातें होती हैं। कॉन्ट्रा एसेट क्या होते हैं? डिविडेंड कॉन्ट्रा एसेट नहीं है। अगर आपने डिविडेंड को कॉन्ट्रा का नाम देना है तो आप इसे कॉन्ट्रा इक्विटी कह दें। कॉन्ट्रा है क्या चीज? कॉन्ट्रा एसेट, जैसे आपने बड़ी पर्टिकुलर एक टिपिकल बात कर दी, कॉन्ट्रा एसेट, एनी एसेट जो चीज कॉन्ट्रा लगा लेती है, हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी और मेरी बात में, कहते हैं ना हम जुबान में कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से समझिए कॉन्ट्रा निकला। कॉन्ट्रा क्या होता है? ऑपोजिट। कॉन्ट्रा एसेट आएगा एसेट साइड पे, होगा एसेट का ऑपोजिट। एसेट का ऑपोजिट क्या हुआ? होगा एसेट साइड पे। एसेट साइड का मतलब क्या है? नॉर्मल बैलेंस डेबिट हो। एसेट का, एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट्स, तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होना चाहिए, अग्रीड सर? कॉन्ट्रा एसेट्स क्या होंगे? जिनका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो कॉन्ट्रा एसेट होते क्यों है? ये होते एसेट साइड पे हैं, पर ये बेसिकली जिस एसेट के साथ जुड़े होते हैं उसकी वैल्यू को कम करते हैं। वैल्यू को कम क्यों करते हैं? ये एक किस्म का बताना चाहते हैं वैल्यू का इतना हिस्सा कंज्यूम हो गया। ये इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि एसेट्स को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे देखना है, पर उसके साथ अकाउंटिंग। मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात की थी, मैंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की थी, मैंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोगों को ईमेल में शेयर किया हुआ है। अगर आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि हमारे कुछ रूल्स है, रूल्स कुछ डिमांड करते हैं। वो कहते हैं जितनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करो, दूसरा अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बड़ी अपडेटेड हो।
यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक एक चीज समझ आ रही हो। समझ आने का क्या मतलब है? उसे ना सिर्फ ये पता हो कि ये गाड़ी तुमने कितने की ली थी, बल्कि उसे ये भी पता हो कि आज तक गाड़ी का कितना हिस्सा कंज्यूम कर लिया है, और जब ये पता चल जाएगा कितना हिस्सा कंज्यूम कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा बाकी है। आज की बुक वैल्यू क्या है? अग्रीड और नॉट? एसेट क्या करता है? 10 लाख का एसेट लिया था, ये बताता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या बताती है? 5 लाख उसमें से कंज्यूम हो गया या 6 लाख उसमें से कंज्यूम हो गया, ये बता रही है अक्यूमुलेट। ये कॉन्ट्रा एसेट क्यों है? क्योंकि ये एसेट की वो वैल्यू है जिससे एसेट कम हो गया, कॉन्ट्रा एसेट है। और फिर उसके सामने अमाउंट आती है नेट बुक वैल्यू, 4 लाख रुपए। 10 लाख नबी 6 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। बता के रहे एसेट 10 लाख का था, 6 लाख कंज्यूम हो गया, 4 लाख बच गया। सर प्लीज जी, ये कॉन्ट्रा एसेट डिप्रिसिएशन वैल्यू है। कॉन्ट्रा एसेट वो तमाम एसेट्स हैं जो एसेट की वैल्यू को कम करेंगे। से फॉर एग्जांपल कोई भी और भी हो सकते हैं, अभी मैं आपके साथ उस लेवल पे नहीं गया, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, फूड फॉर थॉट दे देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे इनके पास एक ही एग्जांपल है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की। फूड फॉर थॉट के लिए कह लीजिए या सोचने के लिए कह लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक और कॉन्ट्रा एसेट होता है जिसे हम कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स ये क्या है? आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के पास होते हैं। क्या वो तमाम अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्टेबल होते हैं? अगर सिटी बैंक के पोर्टफोलियो में अकाउंट रिसीवेबल, एक किस्म का सिटी बैंक के पोर्टफोलियो में देखते हैं, सिर्फ एक अकाउंट रिसीवेबल की टाइप को देखते हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में है ना सर। क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स क्या उसे 100% कलेक्ट हो जाएंगे? कभी नहीं कलेक्ट हो सकते सर। क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स 100% कलेक्ट नहीं हो सकते। सो अगर उसके बिलियन के रिसीवेबल्स हैं तो वो क्या करेगा? उसको जरूरी है कि वो उन्हें बिलियन पे ना लिखे। अगर वो बिलियन पे लिख रहा है तो झूठ है, क्योंकि कलेक्ट बिलियन नहीं हो रहा, कलेक्ट तो हो सकता है 990 मिलियन हो, और उससे पता भी है कि कलेक्ट 990 मिलियन होगा, बिलियन नहीं हो सकता। फिर क्या उसे अकाउंटिंग में उसे 1 बिलियन का रिसीवेबल लिखना चाहिए? नहीं सर, अकाउंटिंग हमें ये नहीं सिखाती। पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस ये है कि ये 1 बिलियन मैंने कलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ गई। तो अकाउंटेंट क्या करता है? वो एक अलाउंस एस्टिमेट करता है, उस हिस्से को एक्सपेंस कर देता है। वो कहता है यार अलाउंस होगा कुछ 10 मिलियन का मेरा लॉस हो जाएगा, 990 मिलियन कलेक्ट होंगे, तो वो क्या लिखेगा? एक कॉन्ट्रा एसेट बनाता है। उसका तरीका क्या होता है? अकाउंटिंग डिटेल की बात बाद में करेंगे, पर वो एक कॉन्ट्रा एसेट बनाता है, उसे कहता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अकाउंट रिसीवेबल्स को किस तरह लिखता है? अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, नेट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब यहां कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। सो कॉन्ट्रा एसेट तरह तरह के होते हैं, राइट सर। इसी तरह कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट डिविडेंड इक्विटी अकाउंट है, डिविडेंड इक्विटी साइड पे रिप्रेजेंट होता है। पर बेसिकली डिविडेंड है क्या? कितनी इक्विटी ओनर बिजनेस से बाहर ले गया। तो जब तक डिविडेंड को क्लोज ना कर दो वो एज अ कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट चलेगा। अल्टीमेटली क्लोज कर देते हैं, टाइम पीरियड के एंड पे उसे क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस क्या होता है ये मैं जरा बाद में डिस्कस करता हूं, जरा सा अकाउंटिंग साइकिल करने दे। जो मेजर बातें सर प्लीज। एक्सपेंस और कॉस्ट ओके, मेरे एसेट की कॉस्ट 20 लाख है, मैंने 20 लाख की गाड़ी ली, क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नहीं सर, कॉस्ट का वो हिस्सा जो मैंने कंज्यूम कर लिया। सो एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू सर। सो कॉस्ट का वो हिस्सा जो मैं खा जाऊंगा, वो देखे मैं गाड़ी लेकर आया, मैंने घर बनाया, मेरा घर बना 220 मिलियन का, 2 करोड़ का घर बन गया, क्या मेरी वो कॉस्ट है मेरी? क्या एक्सपेंस है सर? नहीं सर, नहीं सर, वो तो एसेट बना। सो वो एसेट की कॉस्ट है वो एसेट की, पर उसमें से कुछ हिस्सा में से 100 सालों के लिए घर बनाया है, 2 करोड़ का घर बनाया है, तो 2 लाख साल